गुड मॉर्निंग अपरूम फैमिली। अपरूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले कुछ संडे से हम ग्रैटिट्यूड के इम्पोर्टेंस के बारे में सीख रहे हैं और आज पास्टर मोसेस डेविड एक प्रॉफिटिक वर्ड हम सबके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें वो हमें ये बताने वाले हैं कि कई बार हमारे जीवन में सालों साल बदल जाते हैं पर हमारे जीवन की परिस्थितियाँ नहीं बदलती। पर उन ईयर्स के बीच में जब परमेश्वर हमारे लाइफ के सीजन को चेंज करता है तो क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम वचन में जाए, आइए हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज जब हम आराधना में जुड़ रहे हैं, आई वांट टू रीड दिस स्क्रिप्चर, भजन संहिता 136, Psalm 136, and I've just taken up the Passion Translation, and I'm going to use some other translations also. This psalm talks about thanksgiving to God. क्यों परमेश्वर को धन्यवाद दें। पूरे महीने हम आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद दें। And this psalm talks about that reasons, many reasons why we should thank God. And I pray that today you would find your reason to thank our living God. It says, let everyone thank God, for He is good and He is easy to please. His tender love for us continues on forever. Give thanks to God, our King over all gods. Give thanks to the Lord over all lords. Give thanks to the only miracle-working God. Give thanks to the Creator who made the heavens with wisdom. To Him who formed dry ground, raising it from the sea. Praise the one who created every heavenly light. He set the sun in the sky to rule over day. Praise Him who set in place the moon and stars to rule over the night. Give thanks to God who struck down the firstborn in Egypt. He brought His people out of Egypt with miracles. With His mighty power, He brought them down. He split open the Red Sea for them and led His people right through the middle. He vanquished Pharaoh's armies, drowning them all. He led His people through the wilderness. He is the one who smashed mighty kingdoms. He conquered Sihon, king of Amorites. He conquered the giant named Og, king of Bashan. Then He gave away their lands as an inheritance, for He handed it all over to Israel, His beloved. He is the God who chose us when we were nothing. He has rescued us from the power of our enemies. He provides food for hungry men and animals. Give thanks to the great God of the heavens. His tender love for us continues on forever, all the time. For His mercy endures forever. His faithful and steadfast love endures forever. His faithfulness, His loving kindness, His graciousness, mercy, compassion is everlasting. God's love never fails. Hallelujah. Hallelujah. Come on, rejoice in Him. हो सकता है कि आज आप में से कई लोग इन बातों से आप कह सकते हैं कि ये मेरे जीवन में मैंने इसे होते हुए देखा है. And I want you to know that today when you lift up a song of thanksgiving, a heart of thanksgiving, the Lord is going to come and minister to you. Hallelujah. Amen. All that we read, this is what we're going to sing today. Hallelujah. Amen. आइए मिलकर हम आराधना करेंगे राजाओं का राजा यीशु राजा जो जगत में राज करेगा, उसका धन्यवाद करो. Hallelujah. Amen. Come on, let's sing that. ताली बजाकर उसकी आराधना कर सकते हैं. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है. उसकी करुणा सदा की है. धन्यवाद करो. राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया
करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। One more time, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद, धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया, आज का ये दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन, फिर से एक बार कहें उससे, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर, तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब
on, declare it by faith. One more time. कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। Come on, तो आओ मिलकर, तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा आज के दिन। Thank you Lord, hallelujah. Come on, ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। यीशु हमारा सच्चा गडरिया है, हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाले ने ये भी सिखाया कि जब वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा गडरिया है, हमें हरी चराइयों में ले जाता है, कभी कोई कमी घटी नहीं होने देता। हालेलुया। आज जब आप आराधना कर रहे हैं, I want you to know this one thing, that our Lord is a good shepherd. If you hold on to him, if you don't let go of him, you will see blessings wherever you are today. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you Jesus. आनंद मनाएंगे और कहेंगे यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। तो बोलो यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। तो बोलो
Father, we thank you, Jesus. We worship you. Oh, we thank you, Lord, that you are a good God, and your love and your mercy endures forever. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Come on, everybody, lift up your hands unto him, who is the giver of all that is good. Thank you, Jesus. हर बात के लिए धन्यवाद प्रभु, जो हमारे जीवन में तूने किया उसके लिए धन्यवाद, जो आज तू हमारे बीच में इस समय कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, और जो आने वाले दिनों में तू हमारे जीवन में करने वाला है उसके लिए धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are so grateful that you are a faithful God. Thank you, Jesus. We worship you. We lift up our hands to you, Lord. To you, So I thank you for all that you've done, and I thank you for all that you do, and I thank you for all that you've done, all that is to come, all that is to come. Sing it again. So I thank you. So I thank you for all that you've done, and I thank you for all that you do, and I thank you for all that you've done, all that is to come, all that is to come. And I'm so grateful, you're so faithful, you're my Savior, strong and true. And I'm so grateful, you're so faithful, and I place all my trust in you. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. So I thank you. So I thank you for all that you've done, and I thank you for all that you do, and I thank you for all that you've done, all that is to come, all that is to come. And I'm so grateful, you're so faithful, you're my Savior, strong and true. And I'm so grateful, you're so faithful, and I place all my trust in you. Sing it again. I'm so grateful, and I'm so grateful, you're so faithful, you're my Savior, strong and true. And I'm so grateful that you're so faithful, and I place all my trust in you. Yes, Lord, I love you, Jesus. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. You're the mighty one. You're the God above all. Jesus. You're the only one. You're the father to the fatherless. You're the father to the fatherless. You're the peace in all distress. You're the light that brings the darkness. You're the mighty one, the risen sun.
You're the savior to the drowning. I was lost till you found me. Broke the chains that had bound me. You're the mighty one, the risen Son. You're the father to the fatherless. You're the peace in all distress. You're the light that brings the darkness. You're the mighty one, the risen Son. You're the savior to the drowning. I was lost till you found me. Broke the chains that had bound me. You're the mighty one, the risen Son. You're the one who was and is to come. I'm so grateful. You're so faithful. You're my Savior, strong and true. And I'm so grateful. You're so faithful. I place all my trust in you. Yes, Lord, I'm so grateful. You're so faithful. You're my Savior, strong and true. And I'm so grateful. You're so faithful. And I place all my trust in you. Jesus, oh, I trust in you, Lord. Lord, I trust in you. You're the one who reigns. Come on, lift up your voices to Him. Lift up your voices to Him with a new song. With a heart full of thanksgiving and praise. Oh, I remember every good thing that you've done for all your promises, for every word that you spoke over me, Lord. I trust in you. So I look to you, Lord, are Father to me. You, Lord, are my strength. So I look to you. I hope in you, my Lord. You, Lord, have been Father to me. You, Lord, are my strength. You, Lord, are my trust. You, Lord, are my own. I hope in you. I trust in you. I hope in you. I trust in you. So I thank you. And I thank you. And I thank you. So I thank you. And I thank you. And I thank you. Trust in you. Trust in you. I trust in you. Jesus.
जैसे तूने मुझसे प्रेम किया। I find a reason to thank you. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. उसके प्यार में खोए, अपनी बाहें फैलाए, वो पिता आपसे प्रेम करता है। छोड़े ना कर, तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बात, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा। मेरे विश्राम स्थान, मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी सांस, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा। Let's worship him. Hallelujah. तेरे प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है प्रभु। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का, हर सांस में तेरी भलाई
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We wait in your presence, Lord. Surround us with your love. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 9वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। ये बात चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना कैसे खिलाया जा सकता है। यही विचार कई बार आपको और मुझे भी परेशान करता है कि इस छोटी सी ऑफरिंग से, इस छोटी सी देगी से कैसे हम परमेश्वर के राज्य में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। पर आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसको देते हैं। जब हम अपनी छोटी सी ऑफरिंग भी परमेश्वर के हाथों में लेके आते हैं तो परमेश्वर उसको बढ़ाने की कुव्वत रखते हैं। परमेश्वर उस छोटी सी भेंट से ना केवल आपको और आपके परिवार को ब्लेस कर सकते हैं, वरन एक बड़ी भीड़ को ब्लेस कर सकते हैं। उस बच्चे की तरह आज अपने मन को खोलिए और स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल्स पे अपने छोटी सी ऑफरिंग को, अपनी धेकी को, जो भी परमेश्वर आपके मन में डालता है, बोइए और परमेश्वर आपके बोने को ब्लेस करेगा। ना केवल आपको, आपके परिवार को, पर बहुतायत से बहुत से लोगों को आपके कारण आशीष मिलने पाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। फिर से एक बार, सारी दुनिया, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा।
सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार अपरम चर्च के सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ चीज़ों को देख सके, सीख सके। ये वचन के दरमियान मैं चाहता आप प्रार्थना भी करते रहे, अपने दिल को तैयार भी करें और बिलीव करें जब परमेश्वर इनके जीवन में काम कर सकता है तो प्रभु हमारे जीवन में भी कर सकता है। हम अपने लाइफ के परिस्थिति से नज़र हटाकर हम परमेश्वर की ओर नज़र लगाएं और प्रभु से कहे, लॉर्ड सारी बातें जो भी कुछ जीवन में होता चला आ रहा है, जिन भी बातों में से होकर मैं गुजरने पा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों के बीच में मैं होप करना चाहता, आशा करना चाहता हूँ लॉर्ड कि आप मेरे सारे परिस्थिति को बदलने में संभव है। आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। पिताजी, एक नया वर्ष, एक नया समय, एक नया सीजन मेरे लाइफ में आपके अनुग्रह से शुरू होने पाए। आइए मैं आपके ध्यान को निर्गमन की किताब इसके 12वें अध्याय के पहले दूसरे वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। अब याद रखना, 430 साल की गुलामी में इजरायली लोग थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं। जीवन में कुछ बदलता नहीं गए। हर समय, हर सीजन, हर समय एक ही काम है, गुलामी गुलामी गुलामी। थक चुके हैं, परेशान है। बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मर जाते हैं। गुलामी उनके लाइफ से छूटता नहीं गए। गुलामी का दर्द उनके लाइफ से हटता नहीं गए। उसमें बंधे और फंसे पड़े हुए हैं। हर दिन जब जागते हैं तो उनके मन में ये इच्छा है, कब हम आज़ाद होंगे, कब हम गुलामी से बाहर निकलेंगे। 430 साल में न जाने कितने बच्चे पैदा हुए और न जाने कितने बुजुर्ग मर गए, ये आशा करते हुए कि कब हम ये गुलामी में से आज़ाद होंगे। इतने वर्ष बीत गए, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ बीत गई और पीढ़ियाँ गुलामी में चली जा रही है। मगर अब सडनली एक पीढ़ी ऐसी आती है जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उनके लाइफ पर दिखाई देता है। आज मैं कहना चाहता यीशु मसीह के नाम से ध्यान से सुनना, हम वो पीढ़ी नहीं है जो कनान देश से निकलकर मिस्र में गुलाम बनकर आए, कनान देश से निकलकर मिस्र में आए और वहां गुलाम बन गए। हम वो पीढ़ी नहीं है। हम वो भी पीढ़ी नहीं है जो गुलामी में पैदा होकर गुलामी में मर गए, मगर हम वो पीढ़ी है जो भले पाप और बुराइयों की गुलामी में तो पैदा हुए, मगर हम उसमें से आज़ाद होकर वाचा के देश में पहुंचने वाले लोग हैं। हम वो पीढ़ी है जिनमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई है। हम वो पीढ़ी है जिसमें परमेश्वर के वादे पूरे होते हैं। एंड लेट अस बिलीव, मैं ऐसा ही नहीं मरूंगा, मगर मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखूंगा। मैं वो वंश हूं, मैं वो पीढ़ी हूं। अपने आप के लिए हम घोषणा करें कि मैं वो वंश, मैं वो पीढ़ी हूं जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को होता हुआ देखूंगा। मेरे बाप दादाओं ने क्या देखा क्या नहीं देखा, मुझे उससे लेन देन नहीं है,
मैं किस वंश किस घराने में से आता हूं, मैं उस पर भी ध्यान नहीं रखना चाहता। मगर आज मेरा ध्यान है परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी है वो प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए, वो वादे परमेश्वर के पूरे होने चाहिए। कौन सी पीढ़ी अब्राहम को परमेश्वर ने दी हुई प्रतिज्ञा में खड़ी होने वाली है और वो प्रतिज्ञाओं को पूरा होता हुआ देखने वाली है। देखो निर्गमन इसके 12वें अध्याय के पहले दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। इस पीढ़ी के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। मुझे इतना सुंदर लगता ना वो लाइन पढ़ते समय, मुझे नहीं पता आपको क्या दिखाई देता है, मगर मुझे ऐसा दिखाई देता मिस्र देश कौन सा जगह है मालूम? ये वो लैंड है जहां वो गुलाम है, ये वो लैंड है जहां वो रोते हैं हर दिन, ये वो लैंड है जहां उनको चैन नहीं है, ये वो लैंड है जहां पर वो गुलामों की एक हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरों की जिंदगी, तकलीफ में जिंदगी को जी रहे हैं। उस जमीन के बीच में परमेश्वर अपने सेवकों से बात कर रहा है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, ये वचन वो परमेश्वर की आवाज जो मूसा और हारून के द्वारा मिस्र में इजराइलियों के पास आई, ऐसे ये वचन आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति के बीच में आपकी ओर परमेश्वर की ओर से आ रहा है, आपके लिए परमेश्वर की ओर से आ रहा है। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर, रिसीव दिस वर्ड। कुछ समझ में आए या ना समझ में आए, कैसे होगा क्या होगा, माइंड समझ पाए या ना समझ पाए, मगर आपको सिर्फ इतना कहना है, जीसस आई एम रेडी, लॉर्ड आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैं तैयार हूं इन चीजों से निकलने के लिए, मैं अपना समर्पण करता हूं, इस वचन के लिए मैं अपना समर्पण करता हूं। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा और हारून से इजिप्ट में बात किया। आज आपने बिगड़ी हुई परिस्थिति में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। क्या बातें किया, पढ़ेंगे क्या बातें किया। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। यह महीना लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। मूसा और हारून से परमेश्वर सिर्फ मूसा और हारून के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर परमेश्वर मूसा और हारून से मिस्र की गुलामी में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर अपने सेवकों को वचन देता है, परमेश्वर अपने सेवकों से वचन के रेवलेशन देता है, आप जैसे परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए, कि परमेश्वर अपना वचन, अपना वादा उनके जीवन में प्रकट करे, उनके लाइफ में परमेश्वर बातों को पूरा करे। सो व्हाट इज द वर्ड फॉर यू, आपके लिए क्या वर्ड है, देखेंगे इसमें से, पढ़ेंगे फिर से। हाँ, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, और बाइबल का वचन कहता वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। जब आप डेट्रोनॉमी में पढ़ोगे ना, इसी भाग को डेट्रोनॉमी में जब व्यवस्था विवरण में मूसा अपने लोगों को आखिरी में लिखता है, तो 16 अध्याय के पहले वचन में मूसा लिखने के समय ये कहता, इसी महीने में परमेश्वर ने, जो अबीब नाम का महीना है, परमेश्वर ने तुम्हें बाहर निकाल के लेके आया, और परमेश्वर ने तुमसे कहा ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का महीना ठहरे। ध्यान से सुनना, यदि कैलेंडर की आप स्टडी करो तो अबीब का महीना अप्रैल और मार्च के समय का महीना आता है, अप्रैल से मार्च के टाइम का महीना आता है। नाउ 430 साल से साल साल इजराइलियों के बदल रहे थे। ध्यान से सुनना, 430 साल से एक के बाद एक साल बदल रहा था, जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा था। उदाहरण के तौर पर यदि 31 दिसंबर को इजरायली गुलाम था, तो 1 जनवरी के अगले साल के भी इजरायली गुलाम ही था, वो गुलाम ही था। उसके साल तो बदलते थे, जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा था। यदि समझाने की रीति पर बोलूं तो लाइफ के सीजन्स चेंज नहीं हो रहे थे, साल बाहर के बदल रहे थे, दुनिया के दृष्टि में चीजें बदल रही थी। नए साल के जश्न और लोग मनाते थे, मगर इजराइल कोई जश्न मना नहीं सकता था, क्योंकि इजराइल का कुछ भी बदल नहीं रहा था। उनके लाइफ में वैसे की सिचुएशन थे 430 साल। बट एक दिन सडनली परमेश्वर बाप कहता है अब बस,
अब एक और महीना आगे नहीं जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा दिखाई देता परमेश्वर मानो जैसे सिंहासन पर से परमेश्वर बिल्कुल मुड़ के साथ खड़ा हुआ और कहा 430 साल बीत गए, जनवरी फरवरी मार्च वह महीना आ गया, मगर अब एक और महीना आगे नहीं जाएगा। यही साल के बीच में अपने बच्चों के लिए मैं नया साल शुरू करूंगा। साल के बीच में नया साल परमेश्वर शुरू कर सकता है। ही इज गॉड। क्या बताना चाह रहा मैं आपको, यदि आप कहते होंगे ये कैसा वर्ष आ गया, ये कैसा साल आ गया, ये क्या तकलीफों से भरा हुआ साल है, बीता साल पूरा कोरोना वायरस से भर के गया, ये साल नया वायरस आ रहा, दूसरा चीजें आ रहा है, साल तो बदल गया मगर परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, हालात वही के वही है। बीते वर्ष 2020 में मेरा जीवन कर्जे में था, नया साल 2021 आ गया, मेरे लाइफ में अभी भी कर्जा है, मैं उन्हीं परिस्थितियों में फंसा पड़ा हुआ हूं, हालातों में कोई सुधार नहीं है, केवल कैलेंडर के साल बदल रहे हैं। आज मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, आपके इन बिगड़े हुए सालों के बीच में आज परमेश्वर एक नया साल शुरू करना चाहता है। और ये नया साल ना इजरायली से क्या कहता मालूम, ये तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू। तुम्हारे लिए मैं ये नया साल शुरू करना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन बातों को समझने में। कहता ये नया साल मिस्रियों के लिए नहीं है, साल के बीच में जो मैं शुरू कर रहा, ये मिस्रियों के लिए नहीं है, बाहर दूसरे कनान देश में रहने वाले अमोरी हिती उन लोगों के लिए नहीं है, मगर ये नया वर्ष मेरे लोगों के लिए है। फॉर माई पीपल, मेरे लोग। वाओ, मेरे लोग। मुझे मालूम परमेश्वर जब ये कहता ना मेरे लोग, और मेरे लोग बोल के परमेश्वर जब काम करता ना, मैं उसे पढ़ता तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि मैं यीशु मसीह के लहू से खरीद कर उसका अपना बन गया हूं, और मेरे लिए ग्रेटर प्लान्स है परमेश्वर बाप के। यदि मैं बिगड़ी हुई परिस्थिति से होकर जा रहा तो परमेश्वर परिस्थिति का टाइम खत्म होने के लिए राह नहीं देखेगा, मगर परमेश्वर परिस्थितियों के बीच में मेरे लिए नया टाइम शुरू कर सकता है, मेरे लिए नया सीजन बिगिन कर सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि डॉक्टर ने आपसे कह दिया इतने महीने बाकी है, यदि आपको किसी ने बोल दिया इतना दिन तो तकलीफ झेलना पड़ेगा, इतना समय तो ये होगा, आज मैं आपसे कहना चाहता परमेश्वर आपके लिए नया सीजन शुरू करना चाहता है। रिसीव इट। जैसे उस दिन परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, लोगों से कह दो मैं नया वर्ष उनके लिए शुरू कर रहा हूं अब से, ऐसे आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं खुद रिसीव करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए यहां से एक नया सीजन बिगिन करे। इस वचन की रिलीज होते बराबर परमेश्वर एक नए सीजन को हमारे लाइफ में बिगिन करने पाए। न्यू सीजन इन जीसस नेम। क्या हुआ पास्टर नए सीजन में? मालूम क्या हुआ? इसी मंथ उनकी गुलामी 430 साल की खत्म हो गई। बाप दादाओं से जिन चीजों ने उनको गुलाम बना के रखा था, जब परमेश्वर ने कहा यहां से नया वर्ष शुरू करूंगा, तो पुराना सब कुछ खत्म कर दिया, पुराना सब कुछ खत्म कर दिया। आपको मालूम, आपको और मुझको भी प्रभु ने कहा, रेवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, बीती बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। बाइबल का वचन कहता, मैं आई विल मेक ऑल थिंग्स न्यू, मैं सारी चीजों को नया कर दूंगा। इसका मतलब प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, प्रभु ने वादा किया है कि बेटा मैं तेरे जीवन में भी सब कुछ नया करूंगा। परिस्थितियों को क्यों देखता है, हालातों से क्यों डरता है? सुन, आई एम अ गॉड, मैं तेरा वो परमेश्वर, मैं तेरा वो बाप हूं जो तेरे लिए नई शुरुआत कर सकता हूं। What I need to do, I need to trust on His word. बाइबल का वचन कहता, मेरे प्रॉफिट्स पर विश्वास करो। उन दिनों में लोगों ने मूसा और हारून, परमेश्वर के चुने हुए नबियों पर विश्वास किया। आज मैं आपसे कहना चाहता, वही वचन जब आज प्रॉफिटिक रीति पर आपके पास आ रहा है, आप विश्वास करो, परमेश्वर एक ऐसा नया सीजन बिगिन करे कि आपके कर्जे की गुलामी खत्म हो जाने पाए, आपके बीमारी की गुलामी खत्म हो जाने पाए, चिंताओं की गुलामी खत्म हो जाने पाए, आपका यह समय खत्म हो जाने पाए। आपको मालूम, इजकेल चैप्टर 37 में, इजकेल चैप्टर 37 आप खोलेंगे मेरे साथ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। खोलिए इजकेल, इसका 37th चैप्टर,
जब आप पढ़ते हो वह इजकेल कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ में समा गया और मुझ में समा कर मुझे सूखी तराई में लेकर गया और कहता है मुझे तराई में ले गया जहां बहुत सारी सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी और कहता परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा इजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती है और इजकेल कहता परमेश्वर तू ही जानता है। और तब सारी स्टोरी को हम जानते हैं मगर मैं आपका ध्यान 11वें वचन से ले जाना चाहता। इजकेल 37 चैप्टर 11वें वचन से पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। सुनो, ये सूखी हड्डियां हवा लगने से उड़ रही थी, पाउडर बन गई थी। न जाने कितने वर्षों से मैंने जो लड़की स्टडी कर रही थी, डॉक्टरेट कर रही थी, बोन्स का स्टडी कर रही थी, मैंने उससे पूछा रेचल एक हड्डी को सूखने के लिए कितना समय लगता है? काफी टाइम, जबकि वो पाउडर बन जाए। बाइबल का वचन है, कह रहा सुनो ध्यान से, जब आप अध्ययन करोगे हवा लगने से हड्डी उड़ रही गई, इतने बरसों हो गए हैं, हारे वे गए, बदतर हाल में गए, आशा जाती रही गए, परिस्थिति कठिन है। ऐसे समय में जब बरसों से हारी हुई जिंदगी को जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन इजराइलियों के पास में आता है। देखो देखो फिर से पढ़ेंगे क्या कहता है, पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, हाँ, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। हाँ, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, हाँ, और हमारी आशा जाती रही। हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। मेरा सवाल यह है, ये हड्डियां क्यों सूख गई और क्यों तुम्हारी आशा चली गई इज़राइल? मालूम क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इज़राइल ने परमेश्वर को टच दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को टच दिया। इसलिए मालूम, आप जब पढ़ते हो नीति वचन 17 अध्याय के 22 वचन में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है हड्डियां क्यों सूख जाती है। वहां वचन कहता आनंदी हृदय शरीर के लिए औषधि है, मगर जब आनंद नहीं होता तो हड्डियां सूख जाती है। ध्यान से सुनना, इजराइलियों के लाइफ से आनंद चला गया। इधर 430 साल वे गुलामी में जी रहे गए, लाइफ से आनंद चला गया है, सूखी जिंदगी है। यहां पर इजरायली लोग इजकेल की 37 चैप्टर में एक ड्राई लाइफ जी रहे गए, क्योंकि आनंद चला गया, हड्डियां सूख गई है, आत्मिक ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, हड्डियां सूख गई है। मगर ऐसे समय में जब हड्डियां सूख गई, मैंने पूछा प्रभु क्यों आनंद चला गया उनका, क्यों उनके लाइफ से जॉय चला गया? परमेश्वर का वचन है, कहता है, ध्यान से सुनना, प्रभु का वचन कहता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है। मगर ये लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को तज दिया। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर के प्रेजेंस को दुखी किया, प्रभु दूर हो गया। ध्यान से सुनो, प्रभु दूर हो गया, और जब परमेश्वर दूर हो गया तो आनंद दूर हो गया, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद मिलता है। आनंद दूर हो गया और आत्मिक तरीके से सूखी हुई दशा में वे आ गए। और अब जब वो सूखी हुई दशा में आ गए तो परमेश्वर का आत्मा उनसे मुलाकात लेता है और इजकेल को उठाकर सूखी तराइयों में मनुष्य के जीवन के इजराइलियों के वे सूखी हुई अवस्था में परमेश्वर लेकर आता है और कहता इजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्योंकि ये इजराइली लोग कहते गए हमारी दशा इन सूखी हड्डियों के समान है, हर एक चीज सूख गया, खत्म हो गया। देखो 3 बातें लिखी है। नंबर 1, हड्डियां सूखी है। आगे पढ़ेंगे 11 वचन। और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। यानी कुछ बाकी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। आशा भी नहीं गई कि अब हम फिर से उभर सकते हैं। हड्डियां सूख गई है, कहां आशा बाकी है ये फिर से जिंदा हो सकता है। 430 साल की गुलामी में इजराइल ने आशा खो दिया था कि शायद अब हम गुलामी से बाहर भी निकल सकते कि नहीं। थक चुके थे गुलामी की जिंदगी से, मगर तब परमेश्वर अपने लोगों के लिए उठ के खड़ा हुआ। वो परिस्थितियां जिससे आप थक गए हैं, आज मैं कहना चाहता ये वर्ष परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। ये वर्ष परमेश्वर की निगाहें आप पर लगी है और परमेश्वर 365 दिन खत्म होकर नया वर्ष शुरू होने के लिए रुकने में इंटरेस्टेड नहीं गए, मगर वर्षों के बीच में परमेश्वर एक नया वर्ष आपके लिए शुरू करना चाहता है।
देखो क्या लिखा है, पढ़ो आगे, इजकेल 37 आगे पढ़ेंगे। इस कारण भविष्यवाणी करके इस कारण भविष्यवाणी कर, क्योंकि ये लोग कहते हैं हम सूखी हड्डियों के समान हैं, हमारी आशा चली गई, हम कट गए हैं, इस कारण इजकेल इनको भविष्यवाणी कर, रिसीव प्रॉफिटिक वर्ड। क्योंकि आपकी परिस्थिति बिगड़ी है, इसलिए परमेश्वर प्रॉफिटिक वर्ड भेजता है। नाउ आपको क्या करना है, रिसीव करना है, पकड़ लेना है, विश्वास से हासिल कर लेना है कि अब नया वर्ष मेरे घर में, मेरे फैमिली में शुरू हो रहा। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों। वाह, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ओ माय पीपल, मेरे लोगों। प्रभु आपको देख कर कहता तू किसी और का नहीं, तू मेरा है, यू आर माइन। तू भले बदतर परिस्थिति में पड़ा है, बट बिकॉज यू आर माइन आई एम गोइंग टू डू समथिंग। ये वर्ड मैंने तेरे पास इसलिए भेजा क्योंकि मैं कुछ करने के मूड में हूं। तू सूखी हड्डी जैसा अपने आप को महसूस करता है, मगर तू मेरा है। तेरी नजर में तू सूखी हड्डी होगा, मगर तू मेरा है। तेरी आशा चली गई होगी, मगर तू मेरा है। तू कर्जे में दबावा होगा, मगर तू मेरा है। सबने तुझे छोड़ दिया होगा, मगर तू मेरा है। प्रभु ये कहता तूने हार को जीवन में महसूस किया होगा, मगर तू मेरा है। और आपको मालूम, यदि मैं परमेश्वर का हूं ना, कुछ होने पर है। क्या होने पर है, देखो। हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा। मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर। वाह, आपको पता चल रहा परमेश्वर कितना मूड में है। पर आपको परमेश्वर के एक्शंस समझ में आ रहे वचन में। प्रभु इजराइलियों से कह रहा तुम्हारी कब्रें खोलकर, इसका मतलब तुम्हारी परिस्थिति ने तुमको कब्र में डाल दिया है, तुम्हारी परिस्थिति ने तुम्हें पूरा निगल लिया है। मगर अब जब परमेश्वर मूड में आया है ना, नया सीजन आपके लाइफ में शुरू करने के लिए, तो परमेश्वर कहता इस नए सीजन में तेरी कब्रें खोलकर तुझे बाहर निकालकर सेना बनाकर खड़ा करूंगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता वे एक्सीडिंगली ग्रेट आर्मी बनकर खड़े हो गए जब परमेश्वर की सांसें उनमें समा गई, जब परमेश्वर का आत्मा उनमें समा गया, वे एक्सीडिंगली ग्रेट आर्मी बन के खड़े हो गए। लिसन टू मी, द वर्ड इज फॉर यू। आपके लिए यह वचन है, परमेश्वर आपकी कब्रें खोल रहा है। क्या है ये कब्रें? पास्टर, कर्जे में हम दबे पड़े हुए हैं, पास्टर बीमारी में हम दबे पड़े हुए हैं, पास्टर आंसुओं में हम दबे पड़े हैं। एक के बाद एक लेयर मिट्टी की, एक के बाद एक लेयर मिट्टी की डाली जाती है जब कब्र बनता है। शायद परिस्थितियों की लेयर्स आपके ऊपर आ गई है, हालातों के लेयर आपके ऊपर आ गए हैं, अब कोई आपकी मदद के लिए नहीं है, जीवन बदतर हाल में है और आपको समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ खत्म हो गया, आपने आशा गंवा दी है और आपके ऊपर जीवन के परिस्थितियों के लेयर्स के ऊपर लेयर्स है। मगर मैं आपको बता दूं, कितनी भी पुरानी लेयर, कितने भी पुराने परत परिस्थितियों के आपके जीवन पर होंगे, आज परमेश्वर मूड में है आपकी परिस्थितियों को खोद कर आपको बाहर निकालने के। इन जीसस नेम आई वांट टू डिक्लेयर दैट यू आर कमिंग आउट। तुम उस ग्रेव में से बाहर आ रहे हो, जैसे लाजर बाहर आया, तुम बाहर आ रहे हो। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन इन जीसस नेम। आपको मालूम, निर्गमन जिसके नाम का मतलब है यू आर कमिंग आउट, ये निर्गमन टाइटल परमेश्वर ने तब दिया जब इज़राइल अंदर जा रहा था गुलामी में। जब इज़राइल अंदर गुलामी में जा रहा था, परमेश्वर मूड में आके बोला, मूसा इसको टाइटल लिख, निर्गमन, यू आर कमिंग आउट। तुझे दिख रहा है तू अंदर घुस रहा है, मगर परमेश्वर बोल रहा अंदर नहीं बेटा, मैं खोद के तुझे बाहर निकालूंगा। मैं नहीं जानता ये किससे पवित्र आत्मा आज बात कर रहा है, मगर मैं एक बात जानता हूं, आज परमेश्वर खड़ा हो गया है भाई आपके लिए। आज परमेश्वर खड़ा हो गया है बहन आपके लिए, वो खोद कर आपको बाहर निकालने के लिए खड़ा हो गया है। और जब वो खोद के बाहर निकालेगा ना, तो आपको सूखी हड्डी नहीं रहने देगा, वो आप में नसों को समवाएगा, वो आप पर मांस चढ़ाएगा, वो आपको एक मजबूत बलवंत सेना बनाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर एक अलग मूड में है। ये जो 430 साल से गुलामी में थे, ये जब बाहर निकल कर आए ना, उसके बाद एक भी राजा इनसे युद्ध जीत नहीं सका।
430 साल जब गुलामी से निकल कर आए, बड़े बड़े राजा उनके सामने लड़ाई हार गए। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक्सीडिंगली ग्रेट आर्मी बनाकर खड़ा किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनफ आपने हार को देखा है, इनफ आपने हार को देखा है। एक नया सीजन, विक्टोरियस सीजन आपके लाइफ में शुरू होता है। आपके हार के बीच में विक्ट्री की घोषणा प्रभु आपके लाइफ पर करना चाहता है। यू विल बी विक्टोरियस इन जीसस नेम। हार खत्म होती है, आप जय को हासिल करते हैं। यह आपके लिए जय का सीजन है। यीशु मसीह के नाम से आई डिक्लेयर। प्रभु कहता, बेटा तेरी आशा गई होगी, चिंता मत कर। बेटा तू हार को महसूस कर रहा होगा, चिंता मत कर। बेटा तू अपने आप को क्या देखता, चिंता मत कर। तेरा बाप कब्र खोद के तुझे बाहर निकालेगा। आप सोच के देखो, सूखी हड्डियां क्या सोच सकती है? सूखी हड्डियां क्या विश्वास कर सकती है? सूखी हड्डियां क्या कर सकती है जो हवा के बहाव बहती है? आज आपकी जिंदगी भी परिस्थिति के बहाव में जहां बह रहे वहां बहती चली जा रही। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है जीवन में, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा लाइफ बाहर से लोगों को दिखाने के लिए मैं अलग जीता हूं, मगर मेरे अंदर सूखापन है पास्टर। मेरे अंदर एक ड्राइनेस है पास्टर। मैं लोगों को दिखना नहीं देता, बट मैं ड्राइनेस से होकर गुजर रहा हूं। मेरे अपने फ्लैश ने मेरे ड्राइनेस को कवर करके रखा है। मेरे डेडनेस को मेरे अपने फ्लैश ने, आउटर लुक ने कवर करके रखा है। मगर आज परमेश्वर कहता, तेरे बाहरी मुखौटे को खोद कर तेरे अंदरूनी सूखेपन में मैं जीवन को लेकर आना चाहता हूं। There is a life coming to you. There is a new season coming to you. क्या हुआ उस नए सीजन में? इस सीजन के पहले 430 साल इज़राइल रोता था और मिस्र हंसता था। मगर अब परमेश्वर कहता है, ये महीना जो मैं तेरे लिए नया वर्ष का शुरू कर रहा हूं, अब तू हंसेगा और तेरा शत्रु रोएगा। इसलिए उसी महीने में 10वें दिन पर मिस्र में रोना और विलाप था, इज़राइल में जय जयकार के नारे और आनंद था। प्रभु आपकी परिस्थिति को उलट देगा। जो बीमारियां आप पर हंसती है, जो परिस्थितियां आप पर हंसती है, वो रोएगी। जो अशुद्ध आत्माएं आप पर हंसते हैं, वे रोएंगे। मगर आप अब से हंसोगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक नया सीजन आपके लाइफ के लिए बिगिन होता है। Come on, receive. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, receive. अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से कहो, Lord, I receive it. I receive it, Lord. I receive it, Lord. I want to see, Lord. बहुत साल बीतते चले गए, मगर अब मैं देखना चाहता हूं पिताजी, ये वर्ष मैं देखना चाहता हूं। Can you pray? Can you pray? आइए अपना मुख खोले, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, लॉर्ड साल तो बीत गए, मगर लाइफ का सीजन चेंज नहीं हो रहा। I desire to see this, Lord. I desire. This is my longing, Father, Lord. उस वर्ष के लोग रोते थे, करहाते थे। मालूम यीशु मसीह, मालूम परमेश्वर बाप ने मूसा से कहा, मुझे अपने लोगों के करहाने की आवाज सुनाई देती है। उसे आपके करहाने की आवाज सुनाई देती है, आपकी दोहाई उसे सुनाई देती है। वो कहता, मैं ऐसा बहरा नहीं हो गया कि तेरी दोहाई को ना सुन सकूं। उसे आपकी दोहाई सुनाई देती है। इस कारण वो कहना चाहता, 2021 खत्म नहीं होगा, बीच में मैं तेरा सीजन बदल दूंगा। आज ये वचन प्रभु भेज रखा है, क्योंकि वो आपको दिखाना चाहता है वो कैसे बदलेगा। वो कैसे बदलेगा। आपके दिन बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, फैमिली के सिचुएशन बदल जाएंगे, चर्च के हालात बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बदलने के मूड में है। साल नहीं, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के मूड में है। उस वर्ष, उस समय, उस महीने में कुछ बातें आपको और बताना चाहता, ध्यान से सुनो। उस महीने के 10वें दिन में बाइबल का वचन बताता है, उसने कहा, एक मेमने को लेना और उसके लहू को दरवाजे पर लगाना। Why this month? ये महीना क्यों आरंभ का महीना होगा प्रभु? क्यों? मालूम है क्यों होगा? क्योंकि इस महीने में ब्लड आकर खड़ा होगा। ध्यान से सुनो, इस महीने में लहू आकर खड़ा होगा, और जब भी ब्लड आता है, बीती बातें बीत जाती है, वहां से न्यू बिगिनिंग होता है।
जब यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए लहू बहाया और उसके लहू के आड़ में आपके मेरे गुनाह अपराध क्षमा किए गए, तो ये मोसेस की बीते बातें बीत गई, गुलामी का जीवन बीत गया, शैतान के मुंह पे तमाचा पड़ा, हंसने वाला रोने लगा क्योंकि उसके हाथ से मोसेस छूट गया। ब्लड के आने से ये मोसेस की कहानी में एक नए वर्ष की शुरुआत हो गई। आज मैं आपसे कहना चाहता, यदि आप पाप की गुलामी में हैं, यदि आप पोर्नोग्राफी, व्यभिचार, गंदगी के गुलामी में हैं, परमेश्वर का नया सीजन आपके लाइफ में शुरू होता है। How it is going to start? Because this day, आज के दिन, इस वर्ष के बीच में, इस महीने में, वो आपको अपने ब्लड से धोना चाहता है। He wants to cover you under his blood. क्या हुआ मालूम उस दिन 10वें दिन में फैमिलीज इजराइल के ब्लड में कवर्ड हो गए। उस दिन लहू के आड़ में कवर्ड हो गए और अब वहां से एक नई शुरुआत हो गई। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, आपका बिजनेस यीशु के ब्लड में कवर्ड होने पाए इसी समय। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आपका फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपके बेटे बेटियां, आपके आपसे जुड़ी हुई सारी चीजें, आपकी प्रॉपर्टी, मिलकत, जायदाद, सारी बातें यीशु के ब्लड में कवर किया जाए, ताकि डेविल आपको देखकर दुखी होने पाए। जैसे अय्यूब के घराने को देखकर वो दुखी होता था, ऐसे आपको देखकर दुखी होने पाए। प्रभु कहता, बेटा ये आरंभ का महीना है और मैं ब्लड में तुझे ढाक कर तेरा लाइफ को शुरू करना चाहता हूं। इट्स टाइम एंड सीजन ऑफ द कवरिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। ब्यूटीफुल टाइम। आपको मालूम, सेकेंड चीज, नंबर 1, यीशु मसीह के ब्लड में फैमिली कवर्ड था। नंबर 2, इजराइलियों को एक काम करना था। क्या काम करना था मालूम? उनसे कहा गया कि कमर में बेल्ट को बांधकर, हाथ में लकड़ी को लेकर, जूते पहनकर, जिस मेमने को तुमने काटा है बलिदान के लिए, उसी मेमने का मांस आग में भूंजकर, कुछ भी नहीं छोड़ना, अतड़िया नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ तेजी के साथ खाना, सुबह तक सारी चीजें खा लेना। यदि मेमना ज्यादा है और परिवार में सदस्य कम है तो पड़ोसी को भी लेके आना और मिल के एक साथ खाना और उसको खाना। अगर कुछ सुबह तक बच जाए तो उसे आग में जला देना। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं आपको बताना चाह रहा। प्रभु ये कहता है, बाहर प्लेग चलता रहेगा, बाहर मिस्री लोग के पहलोटे मरते रहेंगे, मगर इजराइलियों को घर के अंदर बैठकर बाहर के प्लेग के बारे में सोचते नहीं रखना है। घर के अंदर बैठकर मेमने के मांस को अपने अंदर लेना है। मेमना यीशु मसीह का सिंबॉलिक था। ध्यान से सुनो, उन दिनों में उनको पूरा पूरा मेमना अपने अंदर लेना था। आज के दिन में हमें यीशु मसीह को पूरा पूरा स्वीकारना है। उसके टीचिंग्स, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसके जीने का तरीका, सारी चीजें हमें अपने अंदर रिसीव करना है। वी नीड टू रिसीव, हमें रिसीव करना है। सुनो ध्यान से, बाहर दुनिया में क्या हो रहा हमें उधर ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है यीशु मसीह की देह को रिसीव करने में, उसके नेचर को रिसीव करने में। लहू के अंदर हमें क्या करना है? इस नए वर्ष में हमें यह डिसीजन लेना है, यहां से आगे मैं और मेरा यीशु हम एक मेक में रहेंगे। वी विल लिव जीसस के कैरेक्टर और नेचर में मैं बिल्डअप होता चला जाऊंगा, इसमें मैं बढ़ता चला जाऊंगा। आपको मालूम, बाइबल का वचन कहता है, उसी रात परमेश्वर ने इजराइल के सब लोगों को चंगा कर दिया। एक नेशन हील हो गया और ऐसा हील हुआ कि अगले 40 साल जंगल में एक भी बीमार नहीं हुआ। सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसा हील किया कि कोई प्लेग उनको छूने नहीं पाया। प्लेग बाहरी बार निपट के निकल गया, मगर इन घरों को छूने नहीं पाया। जब परमेश्वर का नया सीजन बिगिन होता है ना, संसार पर आने वाली विपत्ति आपको छूने भी नहीं पाती है। एंड आई प्रे फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह के लिए, चुने हुए बेटे बेटियों के लिए, जिनको परमेश्वर कहता है ये मेरे हैं,
मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से संसार में आने वाले प्लेगों के विषय में जो भविष्यवाणियां की गई है, वे सारे प्लेग आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि आप ब्लड में कवर्ड हैं और मसीह की देह में आप भरे और पूरे हैं, इसलिए वो आपको छूने नहीं पाएगी। दिस इज व्हाट आई प्रे इन जीसस नेम। दिस इज, ये बाइबल का वचन कहता बेटा ये तेरे लिए आराम का समय है, ये तेरे लिए ये ब्यूटीफुल टाइम है जो परमेश्वर तेरे लिए करना चाहता है, तेरे लिए प्रभु तैयार करना चाहता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता, प्रे, जब आप ये सब वचनों को सुनते हो तो सिर्फ सुनते मत बैठो। जब वचन खत्म हो जाए, चर्च सर्विस खत्म हो जाए, तो जल्दी से खाने पीने की ओर मत दौड़ जाओ, मगर प्रभु से कहो लॉर्ड जो वचन मैंने सुना मैं देखना चाहता हूं पापा, मैं इन बातों को देखना चाहता हूं पिताजी। आई डिजायर, सोचो जब उस दिन लोगों ने समाचार मूसा और अब्राहम के द्वारा सुना होगा कि परमेश्वर कहता है ये महीना तुम्हारे लिए आराम का होगा क्योंकि गुलामी से मैं तुम्हें बाहर निकाल के ले जाऊंगा, क्या धन्यवाद इजराइलियों के हृदय में से निकला होगा। थैंक यू लॉर्ड, जिन बातों के लिए मेरे बाप दादा तरसते थे, जिस समाचार को सुनने के लिए हमारे बाप दादा तरसते रहे, वे सुने बगैर मर गए, मगर तूने यह सौभाग्य हमें दिया कि यह समाचार हम सुन सके। हाउ ब्लेसेड अवर ईयर्स आर, हमारे कान कितने धन्य है कि ऐसा समाचार सुने कि गुलामी के दिन खत्म होते गए, पाप की गुलामी के दिन तेरे खत्म होते गए, शराब की गुलामी के दिन खत्म होते गए, व्यभिचार के गुलामी के दिन खत्म होते गए, दुष्ट के सारी योजनाओं के गुलामी के दिन खत्म होते गए। ये समाचार के लिए क्या आप धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं और ये कहने के लिए तैयार है लॉर्ड थैंक यू वेरी मच फॉर द प्लान, थैंक यू लॉर्ड। मैं नहीं जानता प्रभु यदि तू अब चेंज नहीं करेगा तो ये साल मैं जिंदा भी रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, मगर प्रभु कहता बेटा ये साल खत्म होने तक नहीं, मैं तुझे अपॉर्चुनिटी अब भी देना चाहता हूं, इसी मंथ में चेंज करना चाहता। इजराइलियों से कहा इस महीना, मगर हमसे कहता अब वो समय है तेरे लिए। मैं आपको बताऊं, आप पढ़ेंगे प्रभु आपके लिए और क्या करना चाहता है नया। यशाया 53, आइजाया 53, 18 और 19 वर्ष को आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं, रिसीव करो बाय फेथ। आइजाया 53, 18 और 19 वचन देखो क्या कहता। यशाया इसका 43, आइजाया 43, 43, 18 और 19 वचन। हाँ, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, जिसमें आप बीते जीते थे, जो आपके गुलामी का समय था उसको स्मरण मत करो। इजराइल ये की गलती करते थे, वे बार बार वो बीते हुए जीवन, बीता हुआ अदरक लहसुन, बीता हुआ वो सारी चीजें याद करते थे। मगर प्रभु ये कहता बेटा सुन, जब नया वर्ष नया सीजन तेरे लाइफ में मैं शुरू किया ना, तो बीती बातों को स्मरण मत कर, बीते पापों को स्मरण मत कर, दोस्तों के साथ बैठकर कैसे शराब पीता था स्मरण मत कर, कैसे व्यभिचार तूने वो फलानी स्त्री के साथ किया स्मरण मत कर, क्या गंदे काम, क्या टेबल के नीचे से लुच की कमाई तूने पाया मत कर स्मरण। बीती बातें बीत गई, उसे स्मरण मत कर। तो फिर क्या करे आगे? न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देख मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वो कब प्रकट होगी? इजराइलियों से वहां कहा इस महीने में, मगर आपसे मुझसे कह रहा अब भी प्रकट होगी। आर यू विलिंग टू रिसीव दिस? आर यू विलिंग टू रिसीव दिस? अब भी प्रकट होगी यीशु मसीह के नाम से आपके लिए। अभी ये काम शुरू हो, जैसे ये वचन आ रहा ऐसे आपके लाइफ में चेंजेस बिगिन हो, आपको एक अच्छा समाचार मिलने पाए, आपको अच्छा फोन कॉल आने पाए, जहां आपने हार को महसूस किया वहीं आपको विजय मिलने पाए, आपके मेडिकल रिपोर्ट अब भी बदलना शुरू होने पाए। यीशु मसीह के नाम से बीमार देह आपकी अब भी चंगी हो, बुखार अभी जाता रहे, कैंसर के गांठ गोले यीशु के नाम से अब भी डिसअपियर होना शुरू हो, किडनी अब भी इसी समय यीशु के नाम से चंगे हो, क्योंकि मेरा पापा कहता है अब भी मैं करने पर हूं। यीशु मसीह के नाम से जो बातें आपको रुलाती थी अब भी इसी समय बंद हो यीशु के नाम से। अशुद्ध आत्मा अब भी लोगों को छोड़ के निकल जा, उन जवान लड़के लड़कियों को अब भी छोड़ के निकल जा। एंगर
फिकर का स्पिरिट अब भी छोड़ के निकल जा, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा अब भी छोड़ के निकल जा यीशु के नाम से, क्योंकि ये वचन की घोषणा मैं तेरे ऊपर करता हूं। परमेश्वर यहोवा ये कहता है अब भी मैं कुछ करने पर हूं। राइट नाउ रिसीव इन जीसस नेम। अ चेंज हैज ऑलरेडी कम। बदलाव आ चुका है। जो बातें तुम देखते थे अब तुम नहीं देखोगे, क्योंकि प्रभु ने बदल दिया है। तुम नहीं देखोगे यीशु के नाम से। प्रभु का वचन कहता है अब भी। एक और बार पढ़ेंगे, देखो क्या कहता है। हाँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। वह अब भी प्रकट होगी। पवित्र आत्मा दिखा दो आपके बच्चों को लॉर्ड। अब भी प्रकट हो जिसकी वो राह देख रहे हैं। अब भी प्रकट हो जिसकी वो राह देख रहे हैं। शिखा थनमा निगे देरेबा रिबा रबा शगदनमा निखेरे रिया रिया रबो। ओ लॉर्ड आई प्रे फादर, आपके बच्चे अनुभव करने पाए, वो देखने पाए वचन के आधार पर। पापा जो वचन में प्रचार कर रहा, यदि वो वचन रेमा बनकर काम ना करे तो कोई मतलब का नहीं। मैं कहता आपके वचन के अनुसार हो, वे अब भी बदलाव देखने पाए, अब भी उन्हें अच्छा समाचार मिलने पाए। लॉर्ड थैंक यू जीसस। अपने बॉडी में वो फील करने पाए। जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पा रही, अब भी यीशु के नाम से वो गर्भ धारण करने पाए। अब भी जैसे सारा ने विश्वास करके गर्भ धारण करने का बल प्राप्त करी, इब्रानी 11:11 में लिखा है, ऐसा मैं कहता अब भी उन कमजोर स्त्रियों के गर्भ में बल प्रवेश होने पाए, आपको महसूस होने पाए, आपके गर्भ में आपको हलचल महसूस होने पाए, यीशु के नाम से अब भी आपके लिए होने पाए। देखो क्या कहता, क्या करेगा प्रभु अभी। हाँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे जो मैं अभी करूंगा? प्रभु कहता नहीं नहीं, आप अनजान नहीं रहोगे। वाह, कैन यू रिसीव? मुझे नहीं पता आपको कैसे बोलूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता, लिपट जाओ इस वचन से, लिपट जाओ प्रभु से, विश्वास में लिपट जाओ और प्रभु से कहो लॉर्ड आई एम रेडी टू रिसीव दिस लॉर्ड। जब प्रभु ये कह रहा क्या तुम अनजान रहोगे, प्रभु इसका मतलब शपथ खा रहा, तुम अनजान नहीं रहोगे, तुमको मिलेगा ही। रिसीव इट। देखो आगे क्या लिखा है। हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वाह, निर्जल देश में, इसका मतलब जहां कभी भी किसी ने जल नहीं देखा। एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ सूखा पड़ा रहता है, मगर अब परमेश्वर मूड में गए उसी सूखे में नदियां बहाने का। ये सारे वचन जो मैं आपको पढ़ा रहा ना, ये बरसों के क्रॉनिक केसेस गए। 430 साल की गुलामी, बरसों से सूखी हड्डियां, बरसों से सूखी भूमि। और इन वचनों को इसलिए पढ़ा रहा हूं, जब परमेश्वर सालों के क्रॉनिक केसेस को एक क्षण में बदल सकता है, वो आपकी परिस्थिति को क्यों नहीं बदल सकता? आर यू विलिंग टू रिसीव दिस प्रोफेटिक वर्ड? और कहने के लिए लॉर्ड आई एम रेडी। लुक, मेरे घर में मैं खड़ा हो गया हूं पिताजी, ये कह के कि मैं रेडी हूं अब भी देखने के लिए। प्रॉफिटिकली इस वर्ड के आधार पर यदि आपको लगे अपने घर में खड़े होना, खड़े हो जाओ। यदि आपको लगे घुटने टेक लेना है, प्रभु के सामने टेक लो और प्रभु को भी दिखने दो, लॉर्ड आई एम रेडी टू रिसीव। लॉर्ड अब भी मैं पाने के लिए तैयार हूं। आत्मिक संसार में मैं पाऊंगा, फिजिकली मैं देखूंगा। यस, प्रभु कहता देखो मैं अब भी करूंगा और तुम इसको देखोगे, अनजान नहीं रहोगे। मैं सूखी जमीन में जल बहाऊंगा। और आगे, सूखी जमीन में जल बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। आगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। किसके लिए? अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए। और आगे पढ़ेंगे तो अपने लोगों के लिए लिखा है। पढ़ो आगे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुण अनुवाद करे। ये मेरे लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग, यीशु के लहू से खरीदे हुए जो प्रभु के बेटे बेटियां आप और मैं है। हमारे लिए ये प्रतिज्ञा है। क्या पढ़ने के लिए है? क्या ये प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए नहीं है, ये प्रतिज्ञा अनुभव करने के लिए है। और तब हम अनुभव करने पाएंगे जब हम प्रभु से कहेंगे लॉर्ड आई एम रेडी। क्योंकि प्रभु तो रेडी है। आप देखो कितना प्रभु जोर से कह रहा, इजराइलियों से कह दिया, इजकेल में कह दिया मैं ये करके रखूंगा। हमने निर्गमन में पढ़ा, परमेश्वर ने कह दिया
कि वर्ष खत्म होने की राह नहीं देखूंगा, यहां से नया वर्ष मैं शुरू करूंगा। परमेश्वर निर्गमन में आधे में नया वर्ष शुरू कर दिया। परमेश्वर इजकेल चैप्टर 37 में उनसे कहता तुम्हारी आशा चली गई, कब्र खोद के तुमको बाहर निकालूंगा। और यहां पर परमेश्वर कहता ये मेरी प्रजा है, इनके लिए निर्जल देश में भी मैं जल और नदियां बहाऊंगा। ये नहीं बोलता बारिश की कुछ बूंदे गिराऊंगा। कंटिन्यूअस फ्लो। नदी का मतलब क्या है मालूम? बारिश आती और जाती है, मगर नदी में कंटिन्यूअस फ्लो होता है। इसका मतलब परमेश्वर एक कंटिन्यूअस फ्लो आपके लाइफ में शुरू करना चाहता है। अब तक आपने क्या देखा मुझे नहीं पता, बट कम ऑन, गेट रेडी एंड रिसीव इट फ्रॉम द लॉर्ड। और कहो लॉर्ड मैं आपके कंटिन्यूअस फ्लो के लिए तैयार हूं। ये वर्ष मेरे लिए एक नए सीजन का वर्ष है, और सीजन्स के समान और सालों के समान ये साल लगी। ये साल एक अलग साल है, ये परमेश्वर की ओर से नया वर्ष मेरे लिए है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा, जो वर्ड आपने मुझे दिया लॉर्ड, वो देह बनकर आपके बच्चों के अंदर प्रवेश करने पाए। फादर मैं प्रार्थना करता यह वचन उन्हें बेचैन करे और वे आपके सामने पुकारने पाए, घुटने टेकने पाए, पुकारने पाए लॉर्ड, और आपसे कहने पाए बीट अनटू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड ओ लॉर्ड। तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, जो कब्र की अवस्था में है खोद के बाहर निकालो, जो बरसों की गुलामी में है उनके लिए नया सीजन आप बिगिन करो पिता। जो सूखी अवस्था में पड़े हैं उनके लिए नदियां आप बहाओ पापा। मेरे पिताजी अपने वचन को पूरा करो, पूरा करो। अपने बच्चों के जीवन में दिखने लायक आपने कहा मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा, तो दिखाओ। आपकी बेटी बेटियां देखने पाए लॉर्ड। यीशु के नाम से कहता बीता बीत गया है, प्रभु कहता उसको स्मरण मत कर, मैं नया करने पर हूं। इन बातों के अनुसार अपने बच्चों के जीवन में इस वचन को आप पूरा करो, मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली के लाइफ में पूरा करो पापा। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। ये एक सुंदर परमेश्वर, अद्भुत प्रभु, इससे दूर रहकर आप क्या करोगे? यदि आज तक अपना जीवन इस परमेश्वर को आपने नहीं दिया, यीशु को आपने नहीं दिया, जो आपके लिए निर्जल देश में जल बहाने के लिए तैयार है, जो आपको बरसों की गुलामी से निकालने के लिए तैयार है, जो आपके कब्र में से खोद कर निकाल के आपको सेना बनाने के लिए तैयार है, क्या उस परमेश्वर के हाथ में अपना लाइफ देना भली बात नहीं है क्या? क्यों हृदय को कठिन करके बैठे हो? जिस हाल में हो उसी में अपना जीवन यीशु को सौंप दो। ये दिन आपका है, ये दिन उसकी प्रजा बन जाने का दिन है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपके घराने फैमिली को संभाल के रखे। ये वर्ष आपके लिए बड़ा ब्लेसेड वर्ष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ब्लेस यू। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. ऑल्सो हमारे वॉकिंग ऑन द वे के ब्रॉडकास्ट को देखना ना भूलें, जो हर थर्सडे और सैटरडे शुभ संदेश टीवी चैनल पर 1 से 1:30 बजे आता है। हम आशा करते हैं कि हमारे टीवी प्रोग्राम्स और संडे सर्विसेज से आपका घराना आशीष पा रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.